أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ۔ اچھا میں چل کئی رہے ہیں. جی کسی نے کچھ بات کی ہے؟ تمہیں پتا لگ رہا كيف حالكن يا أخوات؟ نحنو بخیر یا استاذہ۔ الحمد بالخیری۔ لله الحمد الحمد لله انا بخیر الحمد للہ۔ الحمد لله. جی کوئی سسٹر کوئی بات کر رہی تھی؟ نہیں، کسی کا مائک اوپن تھا۔ اچھا ویسے اوپن سسٹر رکھا تھا. جی اچھا جی، یہ ہے ہماری تجوید کی کلاس. آج ہمارا لیسن نمبر 5 ہے. یہ آپ کی ٹیچرز ہیں نورین اکرم اور حفصہ سہیل. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک وینسڈے سسٹر حفصہ کلاس لیتی ہیں اور ایک وینسڈے میں کلاس لیتی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے ہر ویک میں آنا ہے. آپ سب جو ہے نا وہ ہمارے اس طرح سے اسٹوڈینٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میں نے حفصہ کی کلاس میں جانا ہے یا میں نے نورین کی کلاس میں جانا ہے. ایک ہی کلاس ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تاکہ ہم لحن جلی اور لحن خفی یعنی کہ ایسی بڑی غلطیاں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں ان سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. تجوید کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کو حسین بنانا، خوبصورت بنانا. جب آپ کے مخارج بہترین ہوں گے، آپ کو حروف کی صفات کا پتہ ہوگا، تو انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے آپ کو مدود کا پتہ چلتا جائے گا، آپ کی تلاوت بھی خوبصورت ہو جائے گی اور جو رولز ہم نے اپلائی کرنے ان کی پہچان بھی ہو جائے گی. کیونکہ اگر مخرج کا پتہ ہوگا نا، آپ صحیح مخرج سے آواز نکالیں گے تو آپ کو غنہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی، آپ کو اخفا کرنے کا پتہ چلے گا. اسی طرح سے جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈائیگرام بنائیں، زبان کی بنائیں، دانتوں کی بنائیں، ان کے نام سیکھنے کیوں ضروری ہیں؟ مخارج میں جب آپ کو پتہ چلے کہ اچھا اب یہ دانتوں کا یہاں کام ہے، زبان کے اس حصے سے ہم نے یہ لفظ ادا کرنا ہے، تو آپ جب لیبل کرتے جائیں گے نا یہ ساری چیزیں یاد ہوتی جائیں گی، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. ایک آپ ڈائیگرام بنائیں زبان کی، جو جو آپ کے مخارج ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ الفاظ لکھتے جائیں اور ان کا مخرج خاصہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا جیسے اللسان، یہ مخرج عام ہے، مخرج خاصہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. پھر اس کو بار 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 ڈرا کریں. ٹھیک ہے، اپنے موبائل پر ویسے بھی تو اسکرولنگ کرتے ہیں، نوٹ پیڈ وغیرہ کوئی اس میں کر لیں، یا اس میں اپنے بھی ہوتے ہیں نا، ایپ ایک ہوتی ہے یا جتنے موبائل کے فیچرز ہو اس میں آپ کو مل جائے گا، اس پہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. نہیں بھی ہے تو واٹس ایپ پہ خود اپنے آپ کو بھیج لیں، ایک کوئی خالی تصویر بھیج لیں، کیمرے پہ انگلی رکھ کے تصویر بنا لیں، آپ کے پاس ایک امیج آ جائے گا، اس کے اوپر ڈرا کر لیں. ٹھیک ہے، وہ تو ایڈٹ کرنا سب کو تقریباً آتا ہی ہے. نہیں آتا یہ کام کوئی بات نہیں، کاپی پینسل لیں، اس پہ ڈرا کریں اور لکھتے جائیں جو جو آپ مخارج سیکھتے جا رہے ہیں. مخارج کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نے اپنے اور قواعد سیکھنے ہیں، نون کے ہیں، اسی طرح سے میم کے قواعد سیکھنے ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہم قلقلہ کے گریڈ، تفخیم کے گریڈ، وقف کے جو جہاں جہاں پر ہم نے رکنا ہے نہیں رکنا، علامت، یہ سب کچھ ہم نے سیکھنا ہے. تو ہماری ریکوائرمنٹ آپ سے کیا ہے؟ آپ اپنے کام بھی کرتے جائیں جو آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ ملتی ہیں. اس کے ساتھ سب سے جو پہلی اور ضروری چیز ہے، کلاس میں ضرور تشریف لایا کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے جو کلاس میں جو چیز رہ جاتی ہے نا وہ پھر ویڈیو سے اس طرح کور ہوتی نہیں ہے. ویڈیوز ویسے ہم بھیج تو دیتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ کلاس میں آپ شامل رہیں. 5 مخارج ہیں، ٹھیک ہے، 5 مخارج یاد کر لیں. کون سے ہیں؟ الخیشوم، الجوف، الحلق، الشفتان اور اللسان. ٹھیک ہے، اللسان ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ ابھی ہو رہا ہے. خیشوم کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ نون اور میم میں فطری غنہ موجود ہے.
ٹھیک ہے، اور مشدد ہو جائیں پھر تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ گناہ کیے بغیر جائیں۔ الجوف ہم کر چکے کہ الف مد، واو مد، یا مد، یہ کون سے حروف ہیں جن کے پیچھے جو جیسے اب فتحہ سے، فتحہ کے بعد الف آ جائے، ضمہ کے بعد واو آ جائے، اسی طرح سے کسرہ سے پہلے، او سوری، یا سے پہلے کسرہ آ جائے۔ اب یہ جو مدود بنتی ہیں ان کو ہم نے 2 کاؤنٹ تک پل کرنا ہے۔ یہ کون سی مد بن جاتی ہے؟ مد اصلی۔ اس میں اردو کے نام بول کے دیکھ لیا کریں، اردو کے الفاظ بول کے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم اپنے افعال کرتے ہیں اس میں جو اسم الفاعل کے صیغے پہ، جیسے فاتح، اسی طرح ناصر، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ 2 کاؤنٹ کی مد بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا اردو سے ریلیٹ کر کر کے سوچا کریں، بار بار پریکٹس کیا کریں، پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم نے الحلق کیا۔ اچھا، یہاں پر جو تھا نا مخرج خاصہ اور عام ایک ہی تھا، ٹھیک ہے؟ 3 حروف ہوتے سارے ایک کی جگہ سے انہوں نے نکلنا ہے۔ اب الحلق میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ایک تو ہوگا یہاں پر مخرج عام، وہ کیا ہے؟ وہ الحلق ہوگا۔ اس کے بعد ہے مخرج خاص یا خاصہ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو 3 مخارج ہم نے سیکھے نا، یہ 2 حروف کا الگ ہے، پھر 2 حروف کا الگ مخرج خاصہ ہے، پھر یہ 2 حروف کا الگ ہے، جسے ہم نے کیسے یاد کیا ہے؟ ادنا، وسط اور اقصی، ٹھیک ہے؟ یہ مخرج عام ہے، یہ مخرج خاصہ ہے، یعنی کہ وہ خاص جگہ جہاں سے یہ 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی 2 حروف تھے، یہاں 3 حروف تھے۔ اب یہاں پر ایک مخرج کے اندر 3 مخرج خاصہ ہیں، اور پھر اس کے اندر ہر ایک میں 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی کے 2 ہمیں غین، خا، عین، ہا اور حمزہ ہا مل رہا ہے۔ الشفتان ہم بعد میں کریں گے۔ اب ہم کریں اللسان۔ اللسان میں سے آج ہم کریں گے انشاءاللہ ضاد، ٹھیک ہے؟ جو ہوتے جائیں ہم نے کون سے کر لیے؟ کاف اور قاف، یہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بتائیں اور کون کون سے کر لیے آپ نے ابھی تک؟ الف شجریہ، حرف شجریہ، یہ بسط بھی اللسان۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 2 ہو گئے۔ آج آپ نے ضاد کرنا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اسی طرح سے جیسے یہ آپ کو ایک ہم دکھاتے ہیں نا ہر بار لیبل ہوئی ہوئی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس طرح سے یہ ایک ڈائیگرام اس طرح بنائیں کہ صرف یہ والی جیسے جو بلیک لائن بنی ہوئی نا، یہ والی، یہ آپ بنا لیں، ڈرا کر لیں، اتنا اتنا لکھتے جائیں۔ جیسے یہ ہو گیا ہے، یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ 18 حروف ہیں اور 10 مخارج ہیں۔ یہ خاصہ کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ عام کیا ہے؟ اللسان۔ آپ سے پوچھا جائے کسی بھی لفظ کا مخرج تو پہلے آپ نے بتانا ہے مخرج عام، وہ کیا ہے؟ اللسان۔ اب آگے یہ جو خاصہ بتایا جا رہا ہے، اقصی اللسان، وسط اللسان، اور آج ہم نے کر لینا ہے، یہ کر چکے، آج ہم کریں گے حافۃ اللسان۔ سسٹر حفصہ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی میں نے کہنا تھا کہ ماشاءاللہ کافی سسٹرز نے کام کیا ہوا تھا۔ زبان کی جو ڈائیگرام بنائیں گے نا آپ، صرف ابھی تک جو پڑھے ہیں صرف وہ والے مخارج لکھیں، اور ایک ہی زبان بنائیں۔ 5 زبانیں بنا کے ہر ایک پہ الگ الگ ہی نہیں لکھنا، بلکہ ایک زبان بنائیں، اس کے اوپر 1 2 3، اور آج ہم 4 کرنے لگے، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں تو پھر ایسے اس ایک، طرح آپ ہمارے یہ ہاں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک بنا لی، یہ آپ نے پہلا لکھ لیا جو کیا ہے، پھر آپ نے وسط والا، اور آج ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا حافہ ہو جائے گا۔ بس ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ اکثر لسانے 2 یہاں پر ہم نے لکھنے ہیں، یہاں پر ہم نے 3 حروف لکھنے ہیں، اور یہاں پر صرف 1 حرف لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو آگے لے کے جائیں۔ جیسے ایک ہوم ورک میں آپ نے چیک کروا لیا نا، 2 چیک کروا لیے، ایک اقصی اللسان چیک کروا لیے، وسط اللسان۔ اب جو نیکسٹ آپ نے کروائیں گے نا، اسی کو اسی کاپی پہ جو آپ نے ایک تصویر بنائی اسی کو آگے لے کے چلیں، اس میں آپ ضاد کا ایڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح یہ ہوگا کہ یہ یاد رہیں گے۔ ہر دفعہ الگ الگ سے بنائیں گے نا، وہ پھر خود آپ کنفیوز ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ جو ہم دانتوں کی
डायग्राम को देख के या नामों को देख के परेशान होते हैं। इसके लिए जैसे हमने सीखा था बहुत आसान तरीके से, वैसे ही हमने आपको सिखाया। अभी आप लोगों ने किए दांतों के नाम या नहीं किए, मुझे बताएं जरा। शुरू किए आपने? जी जी शुरू कर जी, दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में इन्होंने कर लिया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेकिन एक दफा ना इनको दोबारा बता दें, एक सिस्टर का मैसेज आया हुआ था कि उनको नाम जो है ना उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ठीक है, ये देखिए एक साइड सिर्फ आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। इन दोनों का एक ही नाम है, सिर्फ ये जो एक हिस्सा भी आप ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये इतना बस। जैसे हमने ये अपर वाला कर लिया और राइट वाला कर लिया, अब ये होगा कि लेफ्ट पे भी और ये लोअर पे भी वही आएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे उलिया कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम में हम उलिया लगा देंगे, और ये जो नीचे वाले इसको कहते हैं सुफला। असफल साफिलीन से याद रखें, ठीक है। सुफला। उलिया याद रखना आसान है, उसका जो ऑपोजिट है वो खुद ब खुद याद होता है। उलिया कैसे? हम कहते हैं सुबहाना रब्बियल आला, ठीक है। आला से उलिया ऊपर वाला, ठीक है, याद रख लें इसको। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है? हम कहते हैं सनाया, यानी कि ये जो दो दांत हैं, तो वाहिद इस्मान, उसी से सनाया। ये सनाया उलिया है, ठीक है, ये दो दांत इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आप यहां से शुरू करें, रुबाई, ठीक है। यहां पर लिखें अनियाब, ये दांत कवर हो गए। इसके बाद ये जो हम मुस्कुराते हैं ना, दाहिक मुस्कुराने को कहते हैं, तो ये इसका नाम भी दवाहिक में आ जाएगा, ठीक है। नाम भी इसका है कि जब मुस्कुराते हुए जो दो दांत नजर आते हैं ना, यानी कि वैसे जब आप थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा जरा खुल के मुस्कुरा लें, हंस लें, तो फिर जो आपके दो दांत नजर आते हैं, दोनों साइडों वाले या नीचे के चार आपके इकट्ठे नजर आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? दाहिक, उसकी जमा है दवाहिक, ठीक है। अब ये हो गया नाम। इसके बाद आप कहेंगे तवाहिन तवाहिन तवाहिन। एक दफा कह के तीन निशान नहीं लगाने, आपने बोल के कहना है। क्या कहना है? तवाहिन तवाहिन तवाहिन, ठीक है। ये तीन ये हो गए। फिर ये जो एक नीचे बच गया है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, इसका नाम मैं लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मजीद। इसको कहते हैं नवाजिस, ठीक है, नवाजिस। अब क्या करना है? अब ये वाले याद रखने हैं, ये एक साइड याद करनी है, ठीक है। सनाया उलिया रुबाई अनियाब दवाहिक तवाहिन 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 नवाजिस, ठीक है। नाजिस से फिर ये नवाजिस हो जाता है। अच्छा, अब क्या करना है? ये एक याद हो गया, बाकी सारे जैसे आप मिरर रखें तो वही चीजें नजर आएंगी ना, इन इन सब के भी वही नाम है, ठीक है। जो हमने वहां किए वही सारे नाम यहाँ अप्लाई कर लें। आप एक डायग्राम पे एक दफा देख के लिख लें, तीन दफा जुबानी लिख लें, ये आपको इसी में सारा याद हो जाना है। ये सबसे आसान तरीका है दांतों के नाम याद करना। क्यों याद करने जरूरी है? क्योंकि आज जैसे हमने दौद का मखरज पढ़ना है, दांतों का काम है बीच में। एक और चीज देख लेते हैं, असनान कहते हैं दांतों को, ठीक है। जो हमारी दाढ़ें हैं ना, उनको कहते हैं अदरास। दाढ़ें कहाँ से शुरू होती हैं? यहाँ से, ठीक है। इनको कहते हैं अदरास। अब क्या करना है? अब हमने जुबान और दांतों के साथ अपना दौद का मखरज सीखना है, ठीक है। ये एक काम आपको और कर सकते हैं, ये इसी तरह से आप भी कलर कोडिंग करते हुए इसी तरह से यहाँ लेबल कर लिया करें, ठीक है। इससे ये होगा कि याद आ जाएगा कि ये जो मैंने ग्रीन कलर किया ये सनाया का था। अब सनाया उलिया है, फिर सुफला है, ठीक है। फिर इसके बाद रुबाई अनियाब दवाहिक तवाहिन 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 नवाजिस। वैसे तो अल्लाह ना करे किसी के दांतों दूंतों में दर्द हो तो बताया करें, अच्छा आज मेरे तवाहिन में दर्द था, या ये कि नवाजिश में था, या किसी के नए दांत जैसे बच्चों के आ रहे हो, उसमें ये छोटी छोटी चीजें ना टिप्स के तौर पे होती है कि चले बार बार मुंह में आएंगी ना, जो अल्फाज मुंह में आएंगे जो हम लिखेंगे वो याद रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद करने जरूरी हैं, ठीक है। ये आपको बना के भी दिखाया हुआ कि दो जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे का, इसमें चार साइड्स हैं, ठीक है। दांत कितने हैं? 12।
और दाढ़ें कितनी हैं 20, मिला के कितने हो गए 32। किसी के कम भी हैं तो कोई मसला नहीं है, हमने अपनी ये जो ड्राइंग करनी है इसमें हमने पूरे ही बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिएगा, ये है हमारी जुबान का जो जो मोटे मोटे किनारे हैं ना, वो मोटे किनारे कहाँ लगने चाहिए, ऊपर वाली 5 दाढ़ों को, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब कुछ लोग दोनों तरफ लगा पाते हैं, कुछ का ये होता है कि एक साइड पे अगर लगाएंगे ना तो आवाज ज्यादा बेहतर निकलती है। कोशिश करके, अगर आप अभी एक साइड पे लगाते हैं, कोशिश करके 2 पे ले आए, लेकिन वो थोड़ा सा ना ऐसे जुबान जब उठाते हैं मुंह जैसे थोड़ा सा टेढ़ा सा ऐसे कारी हजरात का भी देखे, जो एक तरफ लगाते हैं ना जुबान ऊपर की 5 दाढ़ों को, थोड़ा सा मुंह द्वाद पर वो कर लेते हैं ना टेढ़ा, क्योंकि हमने इसको बहुत मोटा अदा करना है। उसके लिए क्या करना, आपने अपनी जुबान को उठाना भी है और ऊपर दाढ़ों के साथ लगाना भी है, थोड़ी सी कर्व शेप में भी आती है, तो थोड़ी सी मेहनत दौद पर ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस कहाँ पे हो जाती है, गैरिल मग़दूबी, यहाँ पर बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है। जब मग़दूब कहेंगे तो जरा आज उसको, जब नमाज अदा करेंगे जोहर की, तो बहुत अच्छे तरीके से दौत को अदा करके देखिएगा। उसके बाद फिर वलद्दोल्लीन, ठीक? तो दौत की 2 मरतबा प्रैक्टिस आपकी हर नमाज में हो जानी और हर रकत में होगी। गौर से देख लीजिए, ठीक है। ये मोटे किनारे ऊपर की 5 दाढ़ों के साथ, कौन कौन सी, नवाजिज, तवाहिन, 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 और एक और क्या है, यहाँ पर कौन सा नाम आएगा, दवाहिक। दवाहिक, ठीक है। इनके साथ हम लिख लेते हैं तवाहिन, 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 और यहाँ पर ये दाहिक लिख लें या दवाहिक लिख लें, ठीक है, ताकि ये याद भी रहे। अब हमने क्या करना है, अच्छा इसको कहते क्या है, जो मोटे किनारे ना, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हाफातुल लिसान, ठीक है, हाफा, हाफा, यही मखरज खास है, इसी नाम को याद कर लेना है, ठीक है। जैसे भी एक सिस्टर ने कहा था ना शजरिया, इसका नाम बन जाएगा हाफिया, हाफियातुल लिसान, ठीक है, हाफा, हाफा, इसको याद रखना। ये भी हमने इंशाल्लाह जब लाम का मखरज सीखना है, फिर हमने इस नाम को दोहराना है, तो नामों को याद रखने की कोशिश करनी, ठीक है। अब ये यहाँ ये हाफतुल बताया कि ये लिसान कौन सा है मैम? जी, हाफतुल लिसान कौन सा आपने बताया मखरज खास? ये जुबान का जो टिप है वो? नहीं टिप नहीं है ना, ये देखें, ये जो, ये अपनी जुबान पे ऐसे ना हाथ लगा के देखें, ये पीछे ये जो दाढ़ों के साथ, ये देखें, ये हमारी दाढ़ें हैं ना, ये देखें, ये दाढ़ें हैं, ये 3 दाढ़ें ये हैं, ठीक है। एक ये दवाहिक से शुरू हुई, अब दोबारा एक दफा अच्छे से देख लें, दवाहिक, अब ये वाली दाढ़ और एक ये, ठीक है, ये सारी क्या है, ये तवाहिन है, और ये जो है ये नवाजिज है। अब हमारी जुबान ये देखें, जो दाढ़ों के पास है ना, यहाँ ये जो मोटे किनारे हैं, ये मोटे किनारे, ये ऊपर की आपने दाढ़ों को लगाने, ये यहाँ पर यही तो बताया है, ये टिप नहीं लगानी, ये क्रॉस कर दिया, और ये एक तरफ से पूरी इकट्ठी करके ये भी नहीं करना। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग एक तरफ लगाते हैं, इनके ये बताया जा रहा है कि तरीका ठीक नहीं है, कोशिश करके इसको 2 साइडों पे ले आए, ठीक है। अगर किसी को भी जैसे शुरू में बाज़ तो आदत होती है ना एक तरफ से जुबान को ऊपर उठाने की, तो इसको कोशिश करके आप ले आए कि दोनों तरफ से कर लें, ठीक है। इससे ये होगा कि बहुत अच्छा प्यारा सा आपका दौद अदा होगा, मुंह में ज्यादा सारी हवा भर के, खुद कोशिश से इसको पुर करें। पुर करने को हम क्या कहते हैं, मुफखम, ठीक है, इसको मोटा और पुर करके पढ़ना है। अब इसकी जो एक तारीफ है वो क्या है, जब हाफातुल लिसान लिख दो यहाँ पर,
जब हाफातुल लिसान यानी कि हमारी जुबान के मोटे किनारे ऊपर की 5 दाढ़ों या अदरास कहेंगे, ठीक है, को लगे तो हर्फ अदा होता है दौद। ठीक है, एक दफा कोई सिस्टर इसको रिपीट भी करेंगे जो मैंने अभी इसकी तारीफ लिखी है। जब हाफतुल लिसान ऊपर की 5 दाढ़ों या इदरास को लगे तो दुआद अदा होता है। दुआद दाद, और बाईं तरफ लगाना ना आसान है, जो आपके मुंह की लेफ्ट साइड है ना उस तरफ लगाना आसान है। अगर शुरू में आपको बाईं तरफ लगा के आसान लगता है ना पढ़ना, तो बाईं तरफ लगाएं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश कर लें कि पूरे मुंह से इसको अदा कर लें, ठीक है। इसको अब आपने याद रखना है। जब हाफातुल लिसान ऊपर की 5 दाढ़ों को लगे तो हर्फ अदा होता है दौद। एक चीज और याद रखनी है, दौद आपने जल्दी से नहीं अदा कर देना, ठीक है। दौद में जुबान आहिस्ता आहिस्ता अपने मखरज को पहुंचती है, ठीक है। वैसे भी हमने पढ़ाई में वरतिलिल कुरआन तरतीला, ठहर ठहर कर पढ़ो। तो जब हम हरूफ भी ठहर ठहर कर पढ़ेंगे ना, बड़े अच्छे से अदा होंगे। तो तेजी नहीं करनी, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं मगदूब, ठीक है, दूध, मगदूब कहेंगे ना जल्दी से, ना तो फिर गौइन के मखरज पे हम पूरा पहुंचेंगे ना दौद पे। आराम से सुकून से पढ़ना है, क्योंकि कुरान है, हमने सारे रूल अप्लाई करते हुए आगे जाना है, ठीक है। तो तजवीद सीखने सिखाने का मकसद भी यही है कि बहुत अच्छे तरीके से हम एक एक चीज को, एक एक हर्फ का सही हक अदा करते हुए पढ़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको बार बार रिपीट करें, बार बार आप दौद की प्रैक्टिस करें। एक तरीका यह है कि जब नमाज में आपने पढ़ना है तो दोनों अल्फाज पर आपने पहुंचकर बहुत अच्छे से दौद अदा करना। वो कौन से थे? एक था अल मगदूब और एक था वलद्दौलीन, ठीक है। एक और कोशिश करनी है, दौद को साकिन करें, हमजा पर फतहा लगाएं, और और इसको भी बार बार पढ़ के देखें, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा अदा हो जाएगा। आज हमारा जो लेसन है कायदा का, पहली तख्ती बार बार रिपीट करनी, ठीक है। आगे आप बढ़ते जाएं, जब भी आप कायदा उठाएं देखें आप पहली तख्ती को बार बार रिवाइज करें। उससे क्या होगा, मखरज आपने वहीं सीख लेने हैं सारे, जो हरूफ पतले हैं मोटे हैं वो सारे आपको वहीं पे ही बहुत अच्छे से अदा करने आएंगे। आगे सारी तख्तियां बहुत आसान होती जाएंगी। अभी ये हमने दो दो अल्फाज सीखने हैं, फिर इसके बाद हमने इनकी जो हरकत हैं उनके साथ सीखना है, मदूद के साथ सीखना है। इन सब में कोशिश क्या करनी है कि जब आपने हर्फ अदा करना है, बिल्कुल पहली तख्ती की तरह अदा करना है, कोई जल्दी नहीं करनी। एक तो टोन बड़ी अच्छी सी बन जाती है, जैसे कारी पढ़ते हैं उसी तरह से हम उसको अदा कर लेते हैं आसानी से। दूसरा ये कि जल्दी जहाँ करेंगे वहीं आपके मखारिज में मसला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये जैसे बच्चों की तरह पढ़ना शुरू किया है, दोबारा से शुरू किया है, तो कोशिश करनी है कि अब हम बहुत अच्छे से सीखते हुए आगे जाएं, ठीक है। ये नहीं करना कि ये लेसन पढ़ा था आज पढ़ के चलें खत्म, ऐसा नहीं करना। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप एक सूरत पढ़ रहे हैं तजवीद के साथ, आप उसको 10-10 दफा सुने, पहले सिर्फ सुने, साथ साथ उंगली रखें। एक दफा सुना, 2 दफा सुना, चले 3 दफा सुना, 3 दफा सुन के 3 दफा खुद पढ़े, फिर सुने, फिर पढ़े, जब तक मखारिज आपके पक्के नहीं हो जाते, जब तक हम सिफात पूरी नहीं कर लेते, जब हम पूरी तरह तजवीद सीख नहीं लेते ना, तब तक क्या करना, तो हम कारी को फॉलो करते हैं ना, कि जैसे वो पढ़ रहे हैं उनको उसी तरह से हम उनकी नकल जैसे करते जाएं ना, कॉपी करते जाएं, पढ़ते जैसे वो पढ़ रहे हैं। जहाँ वो रुकते हैं रुकें, गुन्ना करते हैं, इख्फा करते हैं, फिर ऐसे ऐसा जो हम नाम सीखते जाएंगे, ये जो नून साकिन और मीम साकिन के कवायद सीख लेंगे। इन हुरूफ के हमने मखारिज जहाँ तक कर लिए उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें, जो अभी करने हैं इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब सुनना है ना, फिर हमने इस तरह से सुनना है कि अब यहाँ पर अगर कारी ने जैसे लाम अदा किया है, दौद अदा किया है, बा अदा किया है या कलकला
کیا ہے تو کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو پھر ہم نے دیکھتے ہوئے آگے جانا ہے. جب بھی آپ نے قاعدہ کا لیسن سنانا ہے, آپ نے سب سے پہلے ٹائٹل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو جب شروع کروایا جاتا ہے تو ان کو ٹائٹل پہ اتنی توجہ نہیں دلائی جاتی. تھوڑا سا بچوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے نا, کہ تھوڑا سا انہیں سمجھ آئے گی پڑھنے کی تبھی پتہ چلے گا. تو ہم تو ماشاءاللہ سارے میچور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اردو خاص طور پہ پڑھنی آتی ہے. ہمیں اسی طرح سے یہ جو حرکات ہیں پڑھنی آتی ہے, تو ہمارے لیے ٹائٹل پڑھنا آسان. الدرس الثانی, ٹھیک ہے, الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. ٹھیک ہے, حروف الہجاء المرکبہ, ایک اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرے, جب آپ نے قاعدہ سنانا ہو اس کو پھر وہ تجوید کی طرح, مطلب تلاوت کی طرح, اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں, صرف آپ جیسے لیسن جیسے ہم اپنی کلاس شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں, سمپل پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ. ٹھیک ہے, اب ہم کیسے پڑھیں گے, ایک ایک حرف کا حق ادا کرتے ہوئے. الف, الف, الف کیسے ادا کرنا ہے؟ جو آپ کے اوپر کے دانت ہیں, یہ آپ کے جو نچلا ہونٹ ہے نا, اس کا ابھرا ہوا حصہ, پیٹ جس کو کہتے ہیں, بطن سفلا ہونٹ کا جو, اچھا, اس کے جو ابھرا ہوا حصہ, اس پہ تھوڑے سے دانت ٹچ کر لیں, اوپر والے, جو اوپر والے دانت. ٹھیک ہے, نیچے والے اوپر نہیں کرنے, کچھ اور ہی بن جائے گا. تو جیسے ریبٹ ہوتا ہے نا, دانت اس کے دو باہر ہوتے ہیں, اس طرح کی تھوڑی سی بن جاتی ہے شیپ. الف, الف, اس کو لمبا بھی کرنا, الیف بھی نہیں کرنا, الف. اس کے بعد جب ہم نے دو جوڑنے ہیں نا, اب کہنا ہے لام, الف. لام کے سپیلنگ پڑھنے, ٹھیک ہے, لام, الف, ایسے پڑھنا ہے. لا لا با لا ایسے نہیں پڑھنا. الف, لام, الف, لام, الف, با, الف, لام, الف, لام. ٹھیک ہے, جیسے اس کو پہلے پڑھیں گے با, پڑھیں گے الف, لام, الف, لام. ٹھیک ہے, اب ہینڈ ریز کیجئے. 3 حروف ایک سسٹر پڑھیں گی, پھر اگلے 3 ایک پڑھیں گی. ٹھیک, کیونکہ میں نے اپنے پاس دیکھتی ہوں. اچھا جی, ایک تو ہینڈ ریز ہے سسٹر نصریہ کا, سسٹر شفق. چلیں سسٹر نصریہ آپ شروع کریں. ٹھیک ہے, پھر جو سناتا جائے ہینڈ ڈاؤن کرتا جائے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ 4-5 ہینڈ اور بھی ریز ہو گئے. جی, ابھی آپ سبق سنا نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ادھر سے شروع کر لینا ہے. سسٹر نصریہ چلیں. جی ہاں, السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کر لوں میم. آپ یہاں سے شروع کریں, لام الف سے. اچھا, الف, نہیں, لام, الف. جی میم. یہ یہاں سے شروع کریں, یہاں سے, الدرس یہاں ادھر سے, سے, یہ یہاں سے. الدرس الثانی. اچھا, یہاں سے. ہاں, اچھا, لام, الف, ہا, لام, الف, اس کو آپ نے کیا پڑھا؟ ہا. یہ اوپر لام بھی ہے. اچھا, لام, ہا, لام, ہا, لام, الف. چلیں الحمدللہ, اچھا پڑھا آپ نے. لفظوں کو پہچاننا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگلے جی میم. آپ پڑھیں گی سسٹر شفق, آپ پڑھیں. با لام با اس با کو, کا اس با کو چھوٹا کر دیا, با لام با اور پوز نہ لائیں. ٹھیک ہے, با لام با. با لام با کاف کاف. الحمدللہ. اچھا جی, سسٹر صدف آپ آئیں.
جی کاف با کاف با کاف الف الحمدللہ، کاف بس الف الحمدللہ الحمدللہ. یہ جو میں لکھ رہی ہوں نا، یہ آپ اپنے پاس بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ اسپیلنگز ہیں. یہ اسپیلنگ لکھتے جائیں گے نا، اس سے یہ ہوگا، یاد آئے گا دوبارہ سے. جب آپ اپنا قاعدہ کھولیں گے، تختی کھولیں گے، آپ کو یاد آئے گا کہ اس کو میں نے ایسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سسٹر رضوانہ، آپ یہاں سے پڑھیں. کیف الف با قاف تا تھا قاف تھا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، سسٹر سائمہ. سائمہ طلحہ نام ہے ان کا. جی یہاں میم. سے پڑھیں. با تا سا الحمدللہ. آپ یہ والا لفظ پڑھیں، یہ والا پڑھیں. یہ یہاں پر یہ والا. یہ والا. جی. با لام با با نہیں، با. با ٹھیک ہے. لام با. ابھی ساکن نہیں ہم نے کچھ بھی کرنا. ٹھیک ہے. الحمدللہ. ٹھیک. سسٹر شازیہ، اب آپ یہاں سے پڑھیں. جی. نون یا با الف. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سسٹر، آپ مجھے یہ والا پڑھ کے دکھائیں، یہ جو تیسری لائن کا آخری حرف ہے، لفظ. سوری. جی. تا کاف فا. ٹھیک ہے. تا کاف تا. الحمدللہ. اچھا جی، سسٹر ہے عطیہ. سسٹر عطیہ، آپ یہاں سے پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون الف طا الف تو نہیں ہے، جا تو نہیں ہے، دوبارہ پڑھیں. تا الف ٹھیک ہے. یا الف یا الف الف. ٹھیک ہے. یا الف. الف جی الف. بہت پیارا سا ادا کرنا. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا جی، سسٹر وصال. سسٹر وصال، آپ یہاں سے شروع کریں. سا الف جی یہاں سے. جی جی جی. سا الف با سین یا سین کو پورا ادا سین کریں. سین کو پورا با ادا کریں. سین یا سین. الحمدللہ. یہ جو پریکٹس ہے نا آپ کی، یہ جو اب آج آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. جب آپ نے حرکات کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد ہوگا کہ ہم نے پورا پورا لفظ ادا کرنا ہے. جیسے نون، پھر جب ہم اس کو کریں گے نا، جیسے آپ فتح کے ساتھ دیکھیں، نون فتح الف سکون نا، بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو الفاظ کو یہی انہی تختیوں پر ہم نے مخارج اچھی طرح سے سیکھ لینے ہیں. اچھا جی، کوئی سسٹر رہ گئی؟ سسٹر سعدیہ سے میرے خیال سے نہیں کروایا ہم نے. سسٹر سعدیہ اعجاز. سسٹر اگر آپ ہیں تو کر لیجئے، نہیں تو پھر میں اس کو آگے کمپلیٹ کر لوں. سسٹر سعدیہ اعجاز. چلے وہ نہیں آتی تو ہم سسٹر شگفتہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ پڑھیں. اچھا جی، اب سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر سعدیہ، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کیونکہ ہم نے سسٹر شگفتہ کو کال کر لی. ٹھیک ہے. اوکے اوکے. چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں سے پڑھیے. جی. نون سین تا سین سا سین. الحمدللہ. سا اور سین، ابھی مخارج ویسے ہم نے کرنے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق نظر آنا چاہیے. اس میں تھوڑی سیٹی والی آواز نکال لیں. ٹھیک ہے. آپ نے اچھا پڑھا ہے، آپ نے صحیح پڑھا الحمدللہ.
اور اس کو آپ نے سیٹی کے بغیر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو قریب المخارج ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم مخرج اگر خراب کریں نا، اس کی کل ہی مثال میرے نا دوسری کلاس میں بھی آ گئی تھی، اسم اور اسم، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے گناہ اور اس کا معنی ہوتا ہے نام۔ اب صرف سا اور سین کو بدلیں گے نا تو اتنا فرق آپ کے معنی میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مخارج سیکھنے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب سسٹر آ جائیں، سسٹر سعدیہ۔ جی، سا جیم تا حا نون خا۔ خو میں آپ نے ہونٹ گول کی، گول نہیں کرنے، ٹھیک ہے، نون خا۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم ہونٹ گول کرتے نا تو وہ ایک آرٹیفیشل سا جو ایک جو ہوتی نا تفخیم جس کو کہتے ہیں، وہ آنے لگ جاتی ہے، تفخیم، ٹھیک ہے؟ اب کیا ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم نے حلق والے ہیں نا، یہ جو خواہ ہے حروف حلقی میں سے ہے، زبان کا اس میں کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، اس میں ہونٹ بھی آگے نہیں لے کے آنے اور زبان سے بھی نہیں، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ جو ہونٹوں کے ہوں گے وہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوں گے۔ ہونٹوں سے کون سے ادا ہوتے ہیں ابھی ہم نے کیے تو نہیں، لیکن بار بار ہم اس کو ریپیٹ کر بھی لیتے ہوتے ہیں۔ جی، میم با با میم با واو واو با۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے فریز کون سا ہم نے یاد رکھنا ہے؟ ماں با وفا ماں با ہوتی وفا ہے، ہوتی ہے۔ اس میں سے ماں ب و اور ف، ٹھیک ہے؟ یہ صرف چار ہیں بس، ان چار کے علاوہ نہ کہیں ہونٹ آگے لانے ہیں، نہ کہیں گول کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ پھیلانے ہیں۔ جو حلق والے حلق سے ادا کریں، جو زبان والے زبان سے ادا کریں۔ یہ تھوڑا تھوڑا سا جو آپ خود فرق اپنے بولنے میں لائیں گے نا، یہ آپ کے لیسن میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور یہ پھر آپ کی تجوید میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا۔ ہم آپ سے کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ تاکہ ایک تو یہ کہ کلاس میں آپ اٹینٹیو رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بچے نیا نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ سارا کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا ہے نا۔ اب یہ ہے کہ الفاظ کا ہمیں پتہ ہے، مخارج اگر ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، پہلے نہیں سیکھے تھے، تو پھر بھی بہت حد تک ہمیں آوازیں نکالنے کا پتہ ہے، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا بچپن میں بھی جیسے پڑھا تھا تو کچھ نہ کچھ ہمیں مخارج تب بھی اگر ناموں کے حساب سے نہیں بھی پتہ تھے تو نکالنے آتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ نے جب آپ دیکھیں یہ والی تختی ہے نا، اپنے قاعدے کی اگلی تختی کو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں کہ اس میں یہ جو الفاظ ہے، پھر کلاس میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جن سسٹرز نے آج پڑھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ضرور آپ نے کلاس میں حصہ لینا، کیونکہ صرف سننے کی کلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے گا، ہر ایک کے ساتھ ساتھ لکھ لیں، ایک یا دو تختیوں پر لکھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یا ہا ہا، ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھیں، یہ والی آپ کی جو ایک ہوا بھی آنی چاہیے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے با جیم یا میم، با میم، نون میم، تا میم، تا میم، با یا، یا یا، نون یا، تا یا، تا یا، اور سا میں سیٹی نہ نکلے اس لیے کیا کرنا ہے، جو آپ کی زبان کی ٹپ ہے نا، ٹپ آف دا ٹنگ کو آپ اپنے دانتوں کے بیچ میں لے آئیں، تھوڑی سی بیچ باہر نکال لیں، شروع میں ایسے کر لیں، پھر ایسے ایسا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اولیا کے ساتھ ٹچ کرنا۔ سنایولی ایک ساتھ ٹچ کر لیں۔ اچھا جی، یہ ہے نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا تا لام نون با نون، ٹھیک ہے؟
आसान तख्ती है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से ना अदा की हो तो फिर सुनने का भी मजा नहीं आएगा, आपको पढ़ने का भी मजा नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर नसरिया, आपने दोबारा से हैंड रेज किया या पुराना ही हैंड रेज है? पुराना ही है मैम, सब नीचे कर लें, लीव हैंड कर। डाउन कर लिया करें, ठीक है। अब हमने ये जो पढ़ना है ना, इसमें भी जब मैं कहूंगी हैंड रेज करें, फिर आप हैंड रेज कीजिएगा सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैम, मैं बिल्कुल आज हूँ, ठीक यानी है, अंडर आपके पास इधर ज्वाइन किया है। ठीक तो है, ये है कि अभी तो मैंने सुना ही है सारा और समझने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। तो ये है कि यानी बिल्कुल न्यू, तो यहाँ कहाँ से शुरू करवाएंगी आप, यहीं से कि या शुरू से कैसे यानी मैं मैनेज करूँ, मुझे तो नहीं मैं पता। आपको गाइड करती हूँ। जी आप पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम बुशरा। बुशरा। अच्छा, आपने कहा था कि मेरे से जूम ऑन नहीं हो रहा। जी 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 ठीक, जी जी। चलिए हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पहली आपकी कामयाबी है। सबसे पहले तो आपको इस पे मुबारकबाद। खैर मुबारक जी, जी। खैर अच्छा, मुबारक। आपके साथ, हाँ जी, आपके साथ ना मैं शेयर करूंगी प्ले लिस्ट। जितनी हमने अच्छा जितने लेसन पढ़ लिए, बहुत ज्यादा नहीं अभी पढ़ा हमने। सूरह नास से शुरू किया था, सूरह अल फातिहा से, अच्छा ठीक है। तो चार, अच्छा। ये आज हमारा पांचवा लेक्चर था, ठीक है। 4 क्लासेस ठीक है पहले है। तो एक एक ठीक है दिन आप एक एक कर लें तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, और हम पीछे से बार जी बार बार बार, जैसे आज मैंने सारा जी रिवाइज करवाया आप लोगों को, ठीक है। जी डिटेल्ड तो जी जी नहीं है, लेकिन ये कि हम टच करते रहते हैं, ठीक है, ताकि पिछला भूलना थोड़ी है। क्योंकि ये जी कौन सा जी ऐसे है जी कि हमने एक क्लास पास कर ली तो अगले में चले जाना। ये तो हमने पूरी जिंदगी के लिए इसको, तजवीद को अप्लाई करना ही करना है। तो याद रखना जी है, जी ठीक है। जी जी बहुत जी सारी आसानी जी तो आपको ये हो जाएगी कि बार 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 जी, बार आप सुनेंगी इन चीजों को, ठीक है। और दूसरा ये कि आप ठीक देख है लें, वीडियोस देख लें, डिटेल्ड वीडियो है हर एक का, जो हमने मखरज वगैरह करवाया हुआ है, जो सूरतें जी। करवाई हैं। अच्छा चाहिए क्या आपको? आपको अरबी मुसहफ अच्छा। चाहिए, कायदा चाहिए, ठीक है। ये दो जी चीजें आप जी ले लें, और उसको जैसे जी जैसे हम लोग उसको एनालाइज करते हुए लिखते हैं, आपने भी लिखना है, ठीक है। सारी चीजें लिख ठीक है। लीजिएगा, जहां मुश्किल आए जी आप मुझे या हफ्सा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी चलो, हम जी आपको जी, आगे ठीक है। साथ लेके चलेंगे, ठीक है। परेशानी, ठीक ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब हमने करनी है अपनी सूरह, सूरह लहब। अब ये जो है ना, यहाँ पर जैसे हम कहते हैं टू काउंट है, राउंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये एक एक हरकत है और अलग अलग मखरज है। अब आपने तस्मिया और हित, जिसको हम बसमल्ला भी कहते हैं ना, उर्दू में तस्मिया कह देते हैं, ठीक है, और तआवुज, इनको आपने पहली दूसरी क्लासेस में ये करवाए में, वहां से देख के लेबल करना है, अपने पास एक कागज पे लिख लें, और उसको आप फिर अपने मुसहफ में रख लें, जैसे बुक मार्क बनाते हैं ना। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, जहां आपने लेबल किया होगा, जहां आपने सारा एनालाइज किया, निशान लगाए हुए, उसको देख के पढ़ा करें, ठीक है। ताकि बहुत अच्छा सा ये आपका हो जाए तअव्वुज। और अच्छा, दूसरे सदफ का हैंड रेज है, पहले का रेज है या आपने कुछ पूछना है? जी मिस, मैंने ये पूछना था, ये मीम पर कसरा है या फतहा है, बसमल्ला या बिस्मिल्लाह, ये जो आपने अभी लिखा था। बसमल्ला, ठीक है। मल्ला, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जो होता है ना, जिसको हम तस्मिया कहते हैं, ये आप हमारे क्यूसीज में हैं? आप हमारे क्यूसी कोर्स कर रही हैं? जी जी मैम जी। कौन से पे हैं आप? कोर्सेज, क्यूसी 4 5 में? कोर्सेज, 6। जी मिस, कौन से क्यूसी पे हैं आप? 6 अब स्टार्ट करना है, लेवल 6। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तस्मिया, ये जैसे है जी ना, जी तौलिया, ये मस्दर है, ठीक है। तो ये काम का नाम हो जाता है, ठीक है। ये काम का नाम है, जैसे हम तौलिया तुम कहते हैं ना, ये आपने क्यूसी 3 में किए होंगे, जी बिल्कुल। बाबे तफ़ईल से। अब आपने, आपको एक काम मिल गया, आपने इसका पूरा बना के लेके आना टेबल, ठीक है। जी जरूर, इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ठीक है, ये बहुत से लोगों का तो हो जाता है, तो याद रखिए इसमें नून गुन्ना नहीं है, ठीक है। पुर करें, इसको टू काउंट भी दें, लेकिन ये नून गुन्ना वाली आवाज ना निकालें। रहमान तेजी में पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर देते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे टू काउंट है। इन चीजों का ख्याल रखें। यहाँ अगर हमने 6 काउंट डिसाइड कर लिए हैं मद आरिद सुकून के, तो अब हमने पूरी तिलावत में मद आरिद सुकून के 6 काउंट करने हैं, ठीक है। 6 काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम बिल्कुल जीरो स्पीड से पढ़ रहे हैं ना, सबने ऐसे ही पढ़ना है। इसका फायदा ये होगा कि एक आयत आपने पढ़ी ना, वो आपको पता चल गया कि मैंने 6 काउंट के साथ कंप्लीट किया है। आपने जो बीच में मद मुत्तसिल वाजिब बनानी है, मद मुनफसिल बनानी है, या आपने मद असली बनानी, आपको फर्क भी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता जाएगा कि ये 4 to 5 काउंट थे, ये 2 काउंट है, और जो मैंने जहां पर एंडिंग की है वो 6 काउंट की है, ठीक है। 6 काउंट कर सकते हैं, 2 4 6, लेकिन बेहतर ये है कि जैसे हम सीख रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए ये बहुत बेहतर होता है कि हम 6 काउंट करें, ठीक है। तो सबने इसको 6 काउंट पर लेके जाना है। और आज हमारी जो सूरह है, इसमें मद अरली सुकून बन भी नहीं रही। जहां हम खुद से बनाएंगे वहां फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। अगर कहीं बनी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब। मेरे सांस छूट गया था, दोबारा शुरू करती ताकि मैं वो तब तक पहुंच सकूं। تبت يدا أبي لهب وتب। ठीक है, एक मैंने यहाँ लहब किया था, एक यहाँ अब मैंने किया तब। तब तो तशदीद को आपने नोट कर लेना है, ठीक है। कलकला यहाँ भी होगा अगर रुकेंगे, तो कलकला यहाँ भी करना है। यहाँ रुकी थी मैं, मेरा सांस यहाँ पर मैंने मद बनाई, मुझे लगा कि मैं ये वाला जो एक हमने तनवीन और नून साकिन वाला कायदा अप्लाई करना वो मुझसे नहीं होगा, तो अब क्या करना, उससे पहले पहले रुक जाना है, ठीक है। इसको खींच के नहीं पूरा करना, फिर ये होगा या तो यहाँ कमी हो जाएगी या फिर कलकला बहुत जो शिद्दत वाला, जैसे कहते हैं ना, इसका अगर ग्रेड्स में देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड वाला हम कलकला नहीं कर पाएंगे। कलकला किसको कहते हैं? जो आवाज लौट कर आती, इसके मुझे अल्फाज बता दे पहले। जीम दाल। ठीक है, आज इनका बहुत सारा काम है, हम यहाँ से शुरू करें। और एक और चीज याद रखनी है, जब हमने तशदीद वाले हुरूफ और कलकला वाले भी हों, तो जब तशदीद आ गई तो फिर कलकला का रूल यहाँ पर खत्म करना है, ठीक है। ये नहीं ना तब तब बात नहीं करना, तब ऐसे नहीं करना, तब तब आवाज रुक जानी है। ता को हमने एक हरकत पढ़ना है, बा को हमने 2 बार पढ़ना है, तब बत्श। अब इसको हमने पढ़ना तो 2 बार है, लेकिन इसमें कलकला यहाँ हमने नहीं करना, ठीक है। इसके बाद ये जो मुतहर्रिक वाली ये जो थी बा, इसको हमने आगे ता साकिन के साथ मिलाना है। आपके पास ता साकिन हो या काफ साकिन हो, दोनों सूरतों में क्या होगा, हम शो करेंगे, एक वो और ये वाली आवाज आएगी, ठीक है। तब बत, तब बत, ठीक है। ये साकिन पे करना है, ठीक है। साकिन पे जो सिफात होती है ना, वो और भी ज्यादा निकल के बाहर आती हैं। तब बत, इसके बाद है या पे एक हरकत। अब हमें नजर आ रही है फतहा, उसके साथ नजर आ गई हमें अलिफ। अब ये जो कायदा था, हमने कहा कि जौफिया हलकिया यहाँ पर बन जाती है मद असली, और मद असली को हम कितने काउंट देते हैं? 2 काउंट्स। 2 काउंट्स। अब हमने देखा कि पहला लफ्ज खत्म हो रहा है
حرف المد پر، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ حمزہ سے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا کریں گے؟ پہلا لفظ حرف المد پر ختم، دوسرا لفظ حرف المد سے شروع. اب چونکہ یہ لفظ دوسرا ہے نا تو یہاں پر تھوڑا فاصلہ آ گیا نا، تو یہاں پر کون سی مد بنائیں گے؟ فاصلے والی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ناموں کو یاد رکھا کریں، پھر یاد رہ جائیں گے. ہم بنائیں گے مد منفصل، اس کو کہتے ہیں جائز. او سوری سوری، نہیں ٹھیک ہے میں خود بھی کنفیوز ہونے لگی، سوری. اچھا، اس کے کتنے کاؤنٹ کرنے ہیں؟ 4 to 5 4 counts. to 5. ہاں جی، اب میں خود بھی اس میں کنفیوز ہونے لگی تھی. اچھا، تو یہ فاصلے سے منفصل یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، اور منفصل جائز ہے، جو متصل ہے وہ واجب ہے. میں واجب اور اس کو تھوڑا سا مکس اپ کرنے لگی تھی. ٹھیک ہے، منفصل کے ساتھ لکھ لیں جائز، متصل ہے واجب. یعنی اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ والی مد ڈراپ نہیں کرنی. جیسے ہم السمائی پہ پڑھتے ہیں نا، ایک ہی حرف میں جو ہوتی ہے، ایک ہی لفظ میں ہوتی ہے. جو جائز ہے اس میں وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ کمی بھی کر لیتے ہیں نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ نا بالکل 0 سپیڈ میں پڑھیں گے، تو ہم نے یہ ساری مدود اسی طرح سے 4 to 5 لے کے جانی ہے، چاہے وہ مد منفصل ہو، مد متصل ہو، یا جو جیسے ابھی ہم نے مد صلہ کبرا پڑھنی ہے، تو وہ مدود جو ہم نے مد اصلی سے لمبائی میں زیادہ کرنی، اسے ہم لے کے جایا کریں گے 4 to 5 کاؤنٹ تک. ٹھیک ہے، اس کو پھر ایسے دیکھ لیں، تبت یدا. ٹھیک ہے، تبت یدا. اس کے بعد کریں گے ابی، ایک حرکت، اور بی. اب یہ جو ہمیں رول یہاں پہ نظر آیا تھا نا، فتحہ کے بعد الف، کسرہ کے بعد یا، یہاں کیا کرنا ہے؟ 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، یہاں مد اصلی بدل گئی تھی مد منفصل میں، کیونکہ آگے پھر ہمیں حمزہ نظر آ گیا. حمزہ نظر آتا ہے تو پھر تھوڑے سے رول بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان مدود کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. جیسے ہم آج کل مخارج پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم نے انشاءاللہ اگلے کچھ لیسنز کے بعد اپنی مدود شروع کر لینی ہے. وہاں پر ہم دوبارہ پھر ان کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے بنتی ہیں. لیکن یہ جو تھوڑی تھوڑی سی آئی جاتی ہیں ان میں ہماری آیات میں، ان کو ہم وہاں تھوڑا تھوڑا سا سیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب 2 چیزیں ہمیں یہاں نظر آ گئی مد اصلی کی. ٹھیک ہے، مد اصلی 2 کاؤنٹ، لیکن اگر آگے کوئی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے اس لینتھ کو بڑھا لیں گے. اس کے بعد ہے لہب. لہب، اب یہ جو لہب میں یہ جو تنوین کے ساتھ جب ہم نے آگے واو کو ملانا ہے نا، تو نون ساکن آ جائے کہیں یا تنوین آ جائے تو فوراً الرٹ ہو جائے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اب رول اپلائی ہونا ہے. رول ہم نے بعد میں سیکھنے، ابھی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے ایک ادغام کر لینا ہے. کیسا ادغام؟ جس میں نہ تو پوری طرح سے ہم نے آواز کو چھپانا ہے، نہ پوری طرح شو ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بیوں بیوں. ٹھیک ہے، لہ بیوں، یہ والی آپ نے 2 کاؤنٹ پوری کر کے اس آواز کو ہم کہیں گے ادغام. ٹھیک ہے، پھر اس کا ہم سیکھیں گے کہ اس کو پورا نام اس کا کیا ہے. ابھی ہم اس کو ادغام کہہ کے اس کی ایک حرکت کو پڑھیں گے. واو، واو پہ چاہے فتحہ ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، سکون ہو، یا ہم نے یہاں پر مد بنانی ہو جمع کے قاعدے والی، ہر صورت میں آپ کے ہونٹ گول ہونے ہیں. ہم نے کہا ماں با وفا ہوتی ہے، یعنی کہ واو جو ہے یہ ہونٹوں والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہونٹوں کے ساتھ ادا کرنا ہے اور راؤنڈنگ کرنی. کیسی راؤنڈنگ؟ جیسے ڈونٹ بن جاتا ہے نا، اس طرح کی راؤنڈنگ یہ ضروری ہے. یہ کر کے جب تا پہ آنا تو ان راؤنڈ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اس راؤنڈنگ کو چلاتے جائیں، وہ تا بھی ہمارا گول مول ہو جائے گا. اس کو گول مول سا نہیں کرنا. یہ راؤنڈنگ یہیں پہ ہے، یہاں آتے ہی آپ نے اپنے لپس ان راؤنڈ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں جیسے رکی تھی تو میں نے کلکلا کیا تھا، لیکن جب آپ نے یہ رول اپلائی کرنا تو پھر کلکلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہاں پر بیوں بیوں و تب و تب. اب بات تشدید کے ساتھ ہے تو اس کو
ज्यादा शिद्दत के साथ कलकला को बाहर लेके आए, ठीक है। व तब, ताकि आवाज टकराती हुई महसूस हो और पता चले कि ये मुशद्दद था, कलकला वाला हर्फ मुशद्दद था। कलकला वाला हर्फ मुशद्दद हो और साकिन करना हो। पीछे तब्बत में था कि साकिन नहीं करना ना, क्योंकि उसके आगे एक और हर्फ है, वहां पर बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो एक जब आगे कलमा आ गया, एक हर्फ आ गया, उसने क्या किया, उसने कलकला वाली जो इसकी सिफत थी उसको खत्म किया। वहां पर तब बथ नहीं करना, ठीक है। तब बथ यदा, ये दो रूल हो गए। फिर अभी, 2 काउंट। उसके बाद लहब्यूं, ये तीसरा रूल। इसके बाद व तब, तब, ठीक है। आवाज लौट कर वापस आए शिद्दत के साथ। कोई एक सिस्टर पढ़ ले इसको, हैंड रेज करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। सिस्टर शाजिया आप पढ़ेंगी, बाकी लोग हैंड रेज रखें, जी फिर इंशाल्लाह आगे बढ़वाती हूँ इसे। आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्हम्दुलिल्लाह। तब्बत, बत, अत, अक। तब्बत, हाँ, ये जो ना तब्बत था वाली आवाज निकालें, जी हाँ, था वाली। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने यहाँ पर काउंट पूरे किए, यहाँ पर आपने गुन्ना भी कर लिया और कलकला भी अच्छा से कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आप म्यूट कर रहे हैं, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद है मा औगना, मा औगना, औ, ये जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। ये अदनाउल हलक से अदा करना है और चलती हुई आवाज। अब हमारे पास क्या है, दोबारा से वही रूल आ गया। फतहा के बाद हमें नजर आया हरफल मद अलिफ। अब यहाँ पर वैसे तो 2 काउंट बनने चाहिए थे, लेकिन आगे हम देख रहे हैं हमजा भी आ रहा है। सिस्टर हफ्सा, आपका कोई अच्छा, कमेंट? मैंने वो अभी जिन सिस्टर ने पढ़ा था ना, उनके ना ऐसे लग रहा है वाव पे रोलिंग कंप्लीट नहीं हो रही। जब उन्होंने किया ना हुनलहा ब्यू ब्यू, वाव पे इनकी रोलिंग नहीं हो रही, तो इन लोगों ने मिरर रख के उसको यूज करना शुरू किया है या नहीं, ये करण जी बताएं बताइए, सिस्टर सिस्टर। हफ्सा का क्वेश्चन आ गया, आप लोगों ने मिरर लिया या नहीं? अगर सॉरी नहीं अभी लिया ना, मैंने मिरर यूज किया, मेरा हकीकत जी नहीं यूज किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि हो जाए, लेकिन मैं इंशाल्लाह मिरर के साथ भी करूंगी इंशाल्लाह। मिरर के मिरर साथ के करें, बगैर नहीं आपने कोशिश बिल्कुल। करनी। आपके पास फेस ओके पाउडर होगा ओके। ना, उसका शीशा यूज कर लें, आई शेड का यूज कर लें, नहीं है मेरे ब्लश हो। पास अच्छा। बस वो टाइम नहीं निकला कि ऐसे मैं यूज कर और सकूं मैं वैसे कहती हूँ ड्रेसिंग टेबल के सामने ना खड़े होके किया करें, वहां फिर आप अपने कपड़े अपने बाल देखने लग जाते हैं, छोटा शीशा रखे जिसमें आपको अपने होंठ नजर आए, ठीक है। जी मेरी वो स्टूडेंट जी है ना, वो इंशाल्लाह जब मैंने उनको कहा कि मिरर के सामने करें, जी मैंने कहा ये ना हो इंशाल्लाह आप जाके सेल्फियां बनानी शुरू कर दी, अपने छोटा शीशा रखना ताकि सिर्फ अपने होंठों को देखें। तो कई बात, ये हल्की फुल्की सी बात भी कर लेनी चाहिए, ताकि ये ना लगे कि बहुत ही कोई ऐसी क्लास चल रही है जिसमें बोलना भी मना है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक रूल किया था ना, बिल्कुल वो यहीं पर आ रहा है। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? हरफल मद पे पहला लफ्ज खत्म हो गया, दूसरा लफ्ज हमजा से शुरू हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें यहाँ इस मुकाम पर? दे मुंतसिल जाए। मद्दे मुनफसिल जायज आ रही है। और इसकी हमें लेंथ कितनी करनी है? 4 to 5 counts. 4 to 1. ऐसी उंगलियों पे कर लिया करें। मा, ठीक है। मा, और कैसे करते हैं? मा, ठीक है, इस तरह से जैसे काउंट करते हैं ना, हम कहते हैं भी सिर्फ 4 to 5 काउंट गिनने तक, एक हरकत इतनी होती है बस। टेबल पे हाथ मारे, एक हरकत बस इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 to 5 काउंट हमने लंबा करना है। इसके बाद आओ, आओ, चलती हुई आवाज निकालें, जैसे गुरारा गुर गुरा, ऐसी वाली आवाज निकलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें नजर आ रहा है नून फतहा के साथ
اور यहाँ पर ये जो आपको अलिफ सगीरा छोटी अलिफ नजर आ रही जिसको हम खड़ी मद भी कहा करते हैं ना, ये कायम मुकाम है बिल्कुल मद असली के, जैसे हम इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, अब समझ आ गई कि ये जो फतहा के बाद अलिफ वाला अलिफ मद वाला रूल था वो यहाँ भी अप्लाई करना है। इसको हमने 2 काउंट देने हैं। ठीक है, मा औना, फिर इसके बाद है अनहु। अच्छा, जब आप अरबी मुसहफ यूज करेंगे ना, उसमें आपको एक बड़ा फायदा होगा ये वाला कि जहां पर रूल अप्लाई नहीं होना ना, जहां पर समझ लें कि इजहार होना है नून साकिन के बाद, वहां आपको सुकून नजर आएगा। और जहां पर नून खाली नजर आ जाएगा ना, उसका मतलब है कि वहां पे कोई ना कोई यहाँ पर कायदा अप्लाई होना है इजहार के अलावा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नून साकिन तो है, लेकिन इसके बाद हमें हा जो नजर आ रही है ना, तो नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से 6 हरूफ है ना, उनमें से कोई भी आ जाए तो इजहार होगा। ठीक है, अब कोई 2 काउंट देने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पर हमने इसको अगले के साथ मर्ज नहीं होने देना। ठीक है, तो अन हु, अन आइन की आवाज निकालें, नून के साथ मिला लें, अन हु भी नहीं करना। जहां पर करना हुआ वहां पर कुछ ना कुछ रूल अप्लाई होगा, उसको फिर हम इंशाल्लाह नाम के साथ सीखेंगे कि वो कौन सी मद है। तो इसको लंबा नहीं होने देना, बस एक हरकत, लेकिन किस चीज का ख्याल रखेंगे, राउंडिंग का। ठीक है, अब हम ये जो है फतहा के साथ और इसके साथ हमें नजर आ रही है अलिफ मद, मा 2 काउंट। इसके बाद लूहू, चले आ भी गया ये, यहाँ पर राउंडिंग होगी, राउंडिंग चलती जाएगी। अब क्या नजर आ रहा है हमें, दोम्मा और साथ वाव सगीरा। जैसे हमें फतहा के साथ अलिफ सगीरा नजर आई थी, दोम्मा के साथ वाव सगीरा नजर आ रही है। अच्छा जी, ये भी एक मद है, इंशाल्लाह इसके बारे में हमने डिटेल से तो बाद में पढ़ना, लेकिन छोटे छोटे नाम अपने कुरान पाक में साथ साथ लिख लिया करें, ताकि जब हम ये मदूद के बारे में पढ़ेंगे ना तो आसानी हो जाएगी कि हम ये इसको कहाँ पढ़ के आए हैं। इस मद का नाम है मद सिला सुगरा। सुगरा किसको कहते हैं, छोटा, छोटी को छोटी मोटा को। बड़ा और छोटा कुबरा किसको कहते हैं, कुबरा, बड़ी कुबरा बड़ा है। बड़ी को। ठीक है, अभी हम सुगरा कर रहे हैं, जहां पे कुबरा आ गई तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, यानी कि एक मदसिला सुगरा है, एक कुबरा भी है। ठीक है, अब कबीर यहाँ पर सगीर। जी, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 काउंट देने हैं। ठीक है, ये है दोमा भी है, साथ वाव सगीरा है, 2 काउंट मद बनाते हुए मालूहू, हु, यहाँ लंबा करना है, यहाँ बिल्कुल एक हरकत होनी चाहिए। ठीक है, इसकी फिर जो वजूहात है वो इंशाल्लाह हम इस मद की जब डिटेल पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे कि कहाँ बनती है और कहाँ नहीं बनती। ठीक है, इसके बाद है वह। तो जैसे अभी सिस्टर अफसा ने कहा कि मिरर रखें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें ताकि राउंडिंग में कमी ना हो। ठीक है, जब हम अल्फाज को मुफख्म करते हैं तो हम अपने होंठ गोल कर लेते हैं, जहां जरूरत होती है वहां हम भूल जाते हैं, तो इसको हमने अनडू करते हुए बहुत अच्छे तरीके से सारे रूल अप्लाई करने। ठीक है, माँ दोबारा से बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर 2 काउंट दिए, यहाँ भी 2 काउंट देंगे। फतहा के बाद अलिफ नजर आए, या इसको उल्टा भी कर ले, अलिफ से पहले फतहा नजर आए, एक ही बात है। वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर 2 काउंट की मद असली बन जाती है। ठीक है, मद असली है, जो सुगरा थी ये यहाँ थी, ये वाली। अच्छा, इसके बाद है कसब। कसब, कोई लफ्ज मोटा नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ तक पढ़ते सिर्फ एक गौइन आया था ना, इसको हम कहाँ पे देखते हैं, इसको हम देखते हैं खुस्वा दातिन क़िज़। तो इसमें से अभी सिर्फ हमें ये वाला मुफख्खम नजर आया है, बाकी ता से देख लें, यहाँ से कोई भी लफ्ज हमारे पास पुर नहीं है, सारे पतले, मतलब जुबान सीधी रखनी है। कसब, कसब, सीन पे एक सीटी वाली आवाज ले आए। मा अगना अन्हु मालुहु
वमा कसब, ठीक है। सारी चीजों को एक एक हरकत जहां पर है, जहां पे 2 हरकत हैं, जहां पर 4 to 5 है, और कसब, कसब यहाँ पर क्या करना है, अलका, अलकला। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब सिस्टर विशाल आप पढ़िएगा इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, एक चीज जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, वो पता है क्या हुआ, हमारे कुतुब जद में गैन नहीं था, तो अग नहीं करना, ठीक है, अग नहीं करना, अल नहीं करना, नहीं करना, अदो नहीं करना, ठीक है। तो जो सिर्फ कलकला वाले लेटर है उन पे कलकला होगा। जहां पर आपको लगे ना कि मेरी आवाज टकरा जाती है, दोबारा वापस आ जाती है, जैसे अग में हो जाता है, रुक जाए थोड़ा सा, आओ, आओ, जो मखरज है उसकी सही। थोड़ी सी देर के लिए पॉज करें, कोई मिनी सेकंड, 30 सेकंड कर लें, ठीक है, आओ, ठीक। चलती हुई आवाज निकाले, फिर इंशाल्लाह कलकला नहीं होगा। बाकी आपकी मद मुनफसिल जायज ठीक थी। अनहू पे आपने थोड़ा सा लंबा कर दिया, एक हरकत, अनहू, अनहू, मालूहू यहाँ पर ठीक था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद सिस्टर शफक आपने ये वाली आयत पढ़नी, इसके लिए रेडी रहिएगा। अच्छा जी, सीन को सफीरिया और इस पे हमने फतहा पढ़नी है, या फतहा के साथ अब सीन और सौद, सायस, सायस, सीटी भी होगी, ठीक है, मोटी सीटी, यहाँ पर पतली सीटी, सीन मुरक्कक है, सौद मुफख्खम है। इसके लिए क्या, मुंह में हवा भरें ढेर सारी, अस, अस, सीटी भी आ जाएगी और पुर भी हो जाएगा। जुबान को थोड़ा सा गोल कर लें, सीन पे बिल्कुल सीधी रख लें जुबान, फिर इंशाल्लाह ये आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ला जो है ये फतहा भी नजर आ गई, साथ अलिफ सगीरा नजर आ गई, लाम फतहा अलिफ सगीरा ला, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको 2 काउंट देना। ये जो या है ना, ये कुछ भी नहीं है, रस्मुल खत है, लफ्ज क्या है, ला, जैसे इसको हम सयसला ऐसे लिख लें, ठीक है। तो सयस्ला, इसके बाद है ना, यानी कि फतहा के बाद हमें अलिफ नजर आ गया, मद असली 2 काउंट, यहाँ पर भी 2 काउंट। इसके बाद हमें तनवीन नजर आ रही है, तनवीन और नून साकिन एक जैसे रूल होते हैं दोनों के, ठीक है। क्योंकि तनवीन में भी ये जो नारन लिखे ना, नारन खोल के लिखे, इसमें भी एंड पे नून साकिन ही आ जाता है, ठीक, इसलिए नून साकिन और तनवीन इनके एक जैसे रूल अप्लाई होते हैं। रूल अभी हमने सीखने हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इख्फा करेंगे। हम इदगाम क्यों नहीं कर रहे, इख्फा कर रहे हैं, कहीं इजहार कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ हमने इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ लेना है, ठीक है। अभी के लिए याद रख लें कि यहाँ पर हमने इख्फा करना है और 2 काउंट भी देने हैं, ठीक है। नारंजा, अब जा, जात, जात, ये 2 काउंट हो गए, क्योंकि फतहा के बाद अलिफ नजर आ रही है। ता, एक हरकत, इसके बाद है लहब, लहब, हा कौन सी है ये हमने मखरज, अक्सउल अक्सर बस। हल्क वाला। अक्सउल हल्क, अक्सउल ये हल्क वाली। अक्सौल हलक है, जी। ठीक है। जो है ना वसत वाली, वो है हा हाँ और और आइन। आइन, ठीक है। आइन। हम्म मुझे सिर्फ एक आधा मिनट दें, मैं जरा बाहर देखूं, बन रही है।
चलिए जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे लहब। हमें पता चल गया कि ये अक्सौल हलक से हाँ अदा होनी है, फतहा के साथ है, और एंड पर बा आ गया। अब कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए हमें यहाँ पे? कलकला कलकला, ठीक है, वो तो पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब से कैसे पढ़ेंगे? सयस्ला नारन ज़ात लहब। लहब, ब वापस आ जाए, ठीक है, टकरा के जैसे कोई चीज वापस आ जाए। अच्छा, इसको पढ़ लें सिस्टर शफक आप। मैम यही वाली जी 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 जी, यही। सयस्ला नारन ज़ात लहब। अच्छा सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा पढ़ा। आप जब लगने लगे ना कि मेरे अब सांस टूट जाना है, ठीक है, तब क्या करना है, तब जो खुद से मदूद बनानी है उनको भी सीख लें थोड़ा थोड़ा। सयस्ला नारा, नारा। जब भी फतह तेन की तनवीन नजर आए, यानी कि दो जबरों वाली तनवीन नजर आए, तो उस पर क्या करना है, साकिन नहीं करना, वहां पर हमने टू वक्त काउंट की दाल। मद असली बना देनी है, ठीक है, टू काउंट की मद असली बना देनी है। यहाँ रुके, फिर दोबारा अगर तो लगता है कि सायसला शुरू करूंगी तो मेरा जो आगे अखफा होना वो टूट जाएगा, तो फिर नारन से शुरू कर ले, ठीक है, ताकि हमारा जो यस लहब है ना, लहब, वो लहब ऐसे ना हो जाए, ठीक है। मेरा अपना सांस छूटा हो जाता है, खासतौर पर ये जो स्मोक वाले दिन, इनमें तो बहुत ही ज्यादा वो एक खरखराहट सी रहती है ना गले में, उससे होता है सांस रुकने रुकने यस लगता है, मैम। तो थोड़ा सा पीछे रुक जाए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सिस्टर साइमा, सिस्टर साइमा, अब आपने गौर से सुनना है, ठीक है। साइमा आप मुझे ओके करें, जी मैम, जी मैम। ठीक है। अब मैं ये वाली आयत को एनालाइज करती हूँ, फिर आपने इसको पढ़ना है। अच्छा जी, हमारी जब इंशाल्लाह तकरीबन 10 या 15 कह लें सूरतें कंप्लीट होगी ना, फिर हम आपको मौका देंगे कि पहली आयत आप करें, लिखवाएं, दूसरी तो बहुत गौर से सुना करें हर चीज को, ठीक है, ताकि इंशाल्लाह ये आप लोगों को खुद भी जल्दी जल्दी करना आ जाए काम। अच्छा जी, अब है वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। यहाँ पर भी कलकला है, ठीक है, ये जो सूरा है ये कलकला वाली सूरा है। अच्छा जी, ये हमें नजर आ रहा है वाव, और इसके ऊपर है फतहा, ठीक है, यहाँ पर राउंडिंग होगी। अब हमजातुल वस्ल को कहीं इन अलिफ के साथ मिक्सअप नहीं कर देना। हमजातुल वस्ल है इस वाले जुमले, इस वाले लफ्ज के साथ, ठीक है, ये वाव अलग है, ठीक है। अब ये जो हमजातुल वस्ल है, मिलाने की सूरत में ड्रॉप किया जाता है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ वाह, फिर इसके बाद देखना होता है कि ये कौन सा है ना, फेल है या इसमें, तो एक लंबी बात चली जाती है, फिर उसके हिसाब से हम कसरा या फतहा लगाते हैं, ठीक है। तो वम्र अतुहु, आतुहु नहीं है, ठीक है, कि एक हरकत है। वम रॉ, वम रॉ, अब ये रॉ भी नहीं है क्योंकि आगे अलिफ नहीं है ना, आगे हमजा है, हमजा के पास अपनी एक हरकत है, तो ये इसको यहाँ पर कोई मद मुद नहीं बनानी। तो वम्र अतुहु, जैसे यहाँ पर हमने हु टू काउंट की मद बनाई थी, इसका भी नाम वही है, मद सिला सुगरा। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए नाम अपने पास नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करते हुए ये सारी एक एक हरकत बहुत गौर से। अच्छा, एक और चीज, वम, वम ये नहीं करना, वम, वम आराम से पढ़ेंगे ना, फिर ये इसका झटका नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। मैंने एक बात बताई थी, क्या बताई थी? गुन्ना करेंगे। गुन्ना होगा, और ये कौन सा अच्छा। गुन्ना? फितरी इधर गुन्ना, भी होगा। छोड़ के नहीं जी। जा सकते, ठीक है, हम आला नहीं करना अलखुश। इसको। एक मीम साकिन है, एक मीम फतहा के साथ है। हम हम टू काउंट देते हुए फिर आगे ये वाला रूल भी अप्लाई होगा, टू काउंट का, जो हमने फतहा के बाद अलिफ दे करके, फतहा के बाद अलिफ नजर आते हैं तो बस फिर ये मद असली बन जाती है, तो 2 + 2 हो जाएगा, टू काउंट इसके, टू काउंट इसके।
फिर हम्मा करते हुए ला नहीं कर देना, हम्मालतल, ताकि जल्दी से अगला लफ्ज पकड़ लें, कहीं भी आपकी मद ना बन जाए जहां मद की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर भी अच्छा एक और चीज, ये जो हमजातुल वस्ल गिराना है ना, इसमें दो चीजें हो जाती हैं। ये अलिफ लाम वाले होते हैं, जहां पर आप साकिन देखें मिलाते हैं तो फिर वो लाम वाली आवाज नहीं निकलती, सॉरी लाम वाली आवाज आती है। जहां पर तशदीद आ जाती है ना, वहां पर फिर ये जो लाम वाली आवाज है ये खत्म हो जाती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना कि ये जो कहते हैं ना चांद नजर आता है ना, तो ये चांद बना हुआ है। अब क्या करना है, इसको तल करना है। ये जो हमने शमसी और कर रहे हैं ना कमरी, उसमें फिर इसको मजीद हमें पता चलता जाएगा। अभी क्या करना है, अलिफ लाम, इसको लाम तारीफ भी कहते हैं, इसमें हमने मिलाना है। जहां भी मिलाना है वहां पर आपको ये चांद, ये सुकून नजर आ जाएगा। ठीक है, हमजातुल वस्ल गिर गया, तल। अब ये ह तो, ये बारीक है, मुरक्कक, और ये है मुफख्खम। फर्क करने के लिए क्या करें, कुरान पाक पे उंगली रख ले तो पे, ताकि हा बारीक हो जाए। फिर तो अदा करते हुए बा पे उंगली रख लें, ये ना हो कि तो बो भी उतना ही मोटा हो जाए। मुरक्कक, मुफख्खम, फिर से मुरक्कक, हा तौब, हा तौब। तो को पुर करें, जड़ भी उठा लें। तो का मखरज भी इंशाल्लाह हम जल्दी सीखने वाले हैं। ये और ये जो बा है, इस पे जैसे हमने पिछली आयत पे किया कलकला करना है, उसको हम कायम रखेंगे। ठीक है, सिस्टर साइमा से मैंने कहा था कि आप पढ़िएगा वाली जी आयत। मैम। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जैसे पढ़ा ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब आपने पढ़नी है ना आराम से पढ़ लिया करें, ठीक है, इसको तेजी ना किया करें। फिर अगर पढ़नी है तो इसका सही तरह से टाइम पढ़ लिया लगे। करें। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी। नहीं वो फिर उसको सही तरह पढ़ जज़ाकल्लाह। लिया करें। ठीक है, जी तो माशाल्लाह जी। आपने अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, किन बातों का ख्याल रखना है, जो मुरक्कक है पतले उनको पतला पढ़ें, जिनको पुर पढ़ना मुफक्कम उनको मुफक्कम पढ़ें, कलकला वाले पे कलकला कर लें। जहां पर आपको जो रूल, जैसे यहाँ पर मीम मुशद्दद का बताया, वहां पर 2 काउंट दे दें। ये जो हु, अगर आपके पास अभी अरबी मुसहफ नहीं है, आपके पास पाकिस्तानी मुसहफ है, वहां पर ये उल्टे पेश वगैरह बनाए हुए होते हैं ना, उसको भी आप याद रख सकते हैं कि उसको हमने 2 काउंट लंबा करना है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने पास अरबी मुसहफ रखें। बहुत सारे जो तजवीद के रूल है ना, आपको ये अरबी मुसहफ पे ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आप जब पाकिस्तानी मुसहफ से पढ़ेंगे ना, तो आपको हर नून साकिन के ऊपर जज्म नजर आएगी, फिर पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है। इसके अलावा अगर आप कलर वाला ले लेते हैं, उसमें ठीक है, आपको जब तो आप बहुत कॉन्शियस होके पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, मैं इसको ऐसे कर लूं। लेकिन अगर आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल वाला लेके खुद लिखेंगे, खुद कलर कोडिंग कर लेंगे, आप हाइलाइटर से भी कर सकते हैं। मैं वैसे ये कहती हूँ कि जो पेंसिल कलर होता है ना बच्चों के, पेंसिल कलर, उससे किया करें, उससे पिछला पेज भी खराब नहीं होता, और हाइलाइटर की जो इंक उड़ जाती है कुछ अरसे के बाद, उसमें फिर वो मसला भी नहीं होता, वो आपके मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी अपने पास रखा करें। इसके बाद है फी जी दी, फी जी दी हा। अब जितना फी लंबा करना है उतना ही जी भी लंबा करना है। ठीक है, फी जी दी हा, 2 काउंट, 2 काउंट, 2 काउंट। अच्छा, कोई एक सिस्टर हैंड रेज करें। अच्छा माशाल्लाह, हैंड रेज है सिस्टर रिजवाना का भी, सिस्टर सदफ का भी, सिस्टर नसरिया का। अच्छा, ये सिस्टर सदफ आप जरा मुझे ओके करें, सिस्टर सदफ। जी हाँ, जी मिस। अब आपने ये वाली आयत में ये पूरी करूँ एनालाइज, फिर आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो बाकी सिस्टम्स हम फिर बीच बीच में से पढ़वा लेंगे। अच्छा जी, फी में हमें कसरा नजर आई, कसरा के साथ या नजर आ गई। तो हमने जो अलजौफ सीखा था, उसमें अलिफ मद, वाव मद, या मद। ठीक है, ये फतहा वाली है, ये दोम्मा वाली है, ये कसरा वाली है। कसरा के बाद हमें या हरफल मद नजर आया, 2 काउंट। अब ये बिल्कुल यही रूल जैसे लिखा हो जी। ठीक है, अब मिलाया हुआ ना तो आगे दाल मिल गया है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, 2 काउंट का ख्याल रखना है। इसके बाद दाल की एक हरकत है, ये दो दो करते, फी जी दी नहीं कर देना। ठीक है, एक हरकत है। फिर इसके बाद दोबारा से हा,
हा, यहाँ पर 2 काउंट, फतहा भी नजर आ गई, अलिफ मद भी नजर आ गया। इसके बाद है हब, हब। अब ये मुशद्दद नहीं है तो यहाँ पर कलकला निकालना है, ठीक है। मुशद्दद में हमने कलकला को छोड़ दिया था, तब तब बंद कर ली थी आवाज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे हर्फ तो है, लेकिन ये मुशद्दद नहीं, तो हब करेंगे, हब, हब। फिर मैंने कहा था कि जहां भी आप तनवीन देखें, नून साकिन देखें, अलर्ट हो जाएं कि यहाँ पर अब कोई रूल अप्लाई होने लगा है। तो यहाँ पर हम इदगाम करेंगे। फिर इसके बाद हमने ये भी सीखना है कि ये कौन सा वाला इदगाम है, ठीक है। अभी हमने ये सीख लिया कि यहाँ पर 2 काउंट का हमने इदगाम करना है, ठीक है। और ये इदगाम ऐसा हो कि पूरी तरह मर्ज हो जाए, यानी कि लाम साकिन की तनवीन आगे मीम मुशद्दद के अंदर पूरी तरह मर्ज हो जाए। इसके बाद देखें नून साकिन में, यही आपसे बात कर रही थी। नून साकिन अरबी मुसहफ में जहां नून साकिन के बाद इजहार होना हो वहां साकिन आपको नजर आएगा, लेकिन जहां कोई रूल अप्लाई हो ना वहां आपको खाली नून नजर आएगा। ये एक बड़ी निशानी बन जाती है चीज की, हमें पता चल जाता है कि अब हमें अलर्ट होना है, जागना है कि अब यहाँ पे कुछ होने लगा है, ठीक है। अब जैसा नून साकिन वैसा ही नून साकिन, जैसे हम लिख लें हबलुन, हबलुन, ठीक है। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। यहाँ भी नून साकिन है, ये भी नून साकिन है, यहाँ भी हमने इदगाम करना है, अब यहाँ पर भी इदगाम करना है। 2 काउंट यहाँ होने चाहिए, 2 काउंट हमारे यहाँ होने चाहिए। इसके बाद सीन है, सीटी वाला है, मुरक्कक है, पतली सीटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है दाल, दाल कुतुबु जद में आ रहा है, इतनी खामोशी। कुतुबु जद, जी है, जी है। कहीं आप लोगों को चाय पीने की जरूरत तो नहीं है? नो मिस, हमें लगा आप कुछ बताने लगी। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, जो मैंने बताना है वो भी बताती हूँ, ठीक है। अब मसद करेंगे, ये छोटा सा मीम क्यों नजर आता है हमें? इकलाब के लिए। इकलाब के लिए। और इकलाब किस सूरत में करना होगा? आगे जब आयत को कंटिन्यू करेंगे वसन की सूरत में तो वहां फिर इकलाब, और वहां पर फिर हमने ये कलकला नहीं करना, फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पर ये मसा दिन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, ठीक है। जब हम ये वाली अगली आयत साथ मिलाएंगे ना, अगली सूरत सॉरी, तो फिर बिस्मिल्लाह के बा को जब हमने तनवीन वाले कसरा के साथ मिलाना है ना, तो यहाँ पर फिर हम एक कायदा अप्लाई करते हैं इकलाब का। लेकिन अभी हम चूंकि अगली आयत नहीं पढ़ रहे ना, तो मसद, मसद, ठीक है। इसको हमने कलकला करते हुए फुल स्टॉप कर देना है। आज हमारे पास कोई मद आरिदली सुकून नहीं बनी, ठीक है। आज हमारे पास एक नई मद बन गई थी, मद सिला सुगरा। इन मदूद के नाम याद रखते जाएं, एक साइड पे लिख लें। मद असली सीख ली है, वो इस तरह से सीख लिया ना कि वो हमारे अलजौफ में आ गई थी, वो मद असली ही है। मद जातिया भी कहते हैं उसको, मद तबई भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अपने पास लिख लें कि हमने मद आरदी सुकून सीखी है, मद मुत्तसिल वाजिब, मद मुत्तसिल जायज। अभी हमने इनकी डिटेल नहीं सीखी, अभी हमने सिर्फ आयात में इनके नाम सीख लिए और थोड़ा थोड़ा सा ये सीख लिया कि इनके काउंट कितने बनने चाहिए, ठीक है। तो आज हमारी कोई मद आरदी सुकून नहीं बनी। सिस्टर आप आ जाएं, मैंने सिस्टर सदफ से कहा था जी। मिस ही मैंने सिर्फ ये पूछना था, यहाँ पे नून ड्रॉप हो गया, मीम मसद यहाँ पे। मीम, अच्छा मैंने इसको पढ़ के नहीं दिखाया, सॉरी। अच्छा पहले पढ़ के सुनाती हूँ। फी जीदिहा हबलुम मिम मसद, यानी कि नून को मीम में मुकम्मल इदगाम कर देना। मिम, मिम मसद, ठीक है। और मीम जब अदा करते हैं ना तो होंठों पे आपको वाइब्रेशन सी महसूस होनी चाहिए। जी पढ़िएगा। जी मिस। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अच्छा, मिम की आवाज मुझे आई नहीं, शायद आप लोगों को आई हो, मेरे पास शायद आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। एक तो आपने कल जी दोबारा पढ़ती हूँ। पढ़े। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आई थी। जीहा हब्लुम मिन मसद। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप पता चला ना कि आपने 2 दफा इदगाम किया है। आपकी थोड़ी सी कमी आई हब में, हब, ठीक है। ये बा का कलकला लेके आना है, ठीक है।
इस कलकला को ड्रॉप नहीं दो करना, बार कुछ भी हमने दो ड्रॉप नहीं हाँ एक करना। साथ आ गया ना तो फौरन से आवाज चेंज नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। अभी मैं ये आप लोगों से सुन नहीं रही, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जब सुनोगे फिर सुनने में फिर और तरह से हम सुनते हैं ना, कि उसमें फिर आपने प्रॉपर अपनी मदूद का ख्याल रखना है, ताउज़ और पहले बसमिल्लाह सुनानी है, वो पूरी पूरी जो आपने खत्म करनी है 6 काउंट पे, ठीक है। तो अभी ये जो साथ साथ हम पढ़ते हैं ना, इसका ये फायदा हो जाएगा कि जब आप तिलावत करेंगे ना, तो आपको ये जो खुद अपने मुंह से निकली, अपने कानों को सुनाई गई आवाज है, उसमें कोई गलती हो गई तो गलती आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अपनी जिंदगी से निकाल ही देनी है गलतियां। अच्छा जी, एक दफा मैं इसकी तिलावत करती हूँ, उसके बाद ऐसा करेंगे कि हमारे पास वैसे टाइम भी तकरीबन खत्म ही हो गया। चले एक दो सिस्टर से हम पढ़वा भी लेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं ना आप वो हैंड रेज कर लें, जिनकी बारी बिल्कुल भी नहीं आई, ठीक है। और मैं कुछ नाम ऐसे भी देख रही हूँ, एक दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना सुनाया, ठीक है। तो कोशिश करनी सब लोग आया करें, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. अच्छा सिस्टर आबिदा, सिस्टर आबिदा आप आए, पहली आयत पढ़िएगा। ओके बच्चा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب तब, ठीक है, तब तब। हाँ ये वाला जो है ना, ये मुशद्दद है, इसको बड़ा इस तरह से करके दिखा कर हक, इसी तरह से तब कौन, ये जो कलकला वाले हैं ना, इनको मुशद्दद करके थोड़ा सा बोल के दिखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा पढ़ा। अच्छा जी, आज आप माँ नहीं एक एक आयत पढ़ लें, ठीक है। ये अच्छा अभी क्योंकि हमने ठीक है आज ही पढ़ी है ना, अभी मैं सुन नहीं रही, अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एक क्लास ठीक में फिर आपसे सारी आयत ये वाली पूरी पूरी सूरत सुनूंगी मैं, आप सबने तैयारी तशदीद रखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह। मिसी तशदीद कलकला वाले हर्फ पर अगर तशदीद आ जाएगा तो इसको आपने पढ़ने का बताया था, अभी थोड़ा सा हाँ रिपीट इसको, हाँ इस इसको तरीके। हम कहते हैं, जब हम कलकला के ग्रेड सीखेंगे ना, उसमें ये फर्स्ट ग्रेड का कलकला होगा, जी ठीक ठीक है। ठीक है। इसमें ये होगा फर्स्ट ग्रेड का मतलब है सबसे हाईएस्ट पे लेके जाना है इसको। तब इस तरह से हक, हक अक्सर आ जाता है, हुवल हक, ठीक है। ये तो अक्सर आप देखिए आयात पे आ जाता है, आगे जीम लिखा हो, स्वली लिखा हो या वक्फ हो, तो इसको करके दिखा करें इस कलकला को, ठीक है। अच्छा जी, अब सिस्टर रिजवाना आप आ जाएं, अगली आयत पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर रखे राउंडिंग, माँ पे राउंडिंग छोड़ दें, ठीक है। सिस्टर समिया उसामा आप आ जाएं, आप अगली आयत पढ़िएगा। سيصلى نارا ذات لهب जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब सिस्टर बहुत अच्छा अच्छा पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाएं सिस्टर सदफ, आप अगली आयत पढ़िएगा। जी
यही दोबारा से आ गई ना, वम्रातु। जी जी जी। वम्रातुहु हम्मालतल हतब। यहाँ पर आपका मीम का छूट गया कायदा, मीम जी मुशद्दद एक था। मिनट। वम्रातुहु हम हम्मालतल हतब। अच्छा, एक एक चीज देखिए सिस्टर, अब आपने ला को लंबा नहीं करना, आपने पहले भी आपने ये आयत पढ़ी थी। नहीं, नो मिस। अच्छा, चलिए ये आयत आपने 2-3 मरतबा पढ़ी, इसका तर्जुमा देखिएगा, फिर देखिए कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम छुपा हो सकता है। ठीक है, बार बार आपके ऊपर ये जो पढ़ी जा रही है ना, इसको कोशिश करें। और यहाँ पर क्या ख्याल रखना, 2 काउंट आपके हु के होंगे, इसी पहले तरह से मीम नहीं, मुशद्दद। पहले ठीक है, लास्ट वाली पढ़ी। ठीक है, पहले चलिए आप, लास्ट वाली पढ़ी। ठीक है, इसको देखिएगा। ठीक है, ताकि ये जो छोटी सी एक बीच में है मिस्टेक, ये भी निकल जाए। सिस्टर नसरिया आप आ जाएं, आप अगली आयत पढ़ लें। जी मैम। في جيدها حبل من مسد। जी, आपकी आवाज काफी ड्रॉप हुई, लेकिन जहां जहां मुझे समझ आई ना। अच्छा, सब सिस्टर गौर से सुनिएगा, जब हमने हब करना है ना, हब, हब पे बा, इसको तोड़ नहीं देना लफ्ज को। हब जी लुम, हब लुम, इस्लाम जी को साथ ही पढ़ना है। ठीक है, आपका थोड़ा सा ना जी पॉज मैम। आ गया था इसमें, पॉज नहीं लाना। पॉज लाने से पता है क्या होगा, जी आपका कलकला भी खराब हो जाएगा। वैसे माशाल्लाह आपका ठीक जी था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इस पे जी भी जरा जी गौर जी कीजिएगा कि जहां पर अपने हब कहा, लाम को तोड़ना नहीं। من مسد। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज बीच बीच में से ड्रॉप हो जाती है ना, तो वो थोड़ी समझ आती है, नहीं, थोड़ी नहीं। आवाज थोड़ी सी हाँ बंद हो गई, ये पता नहीं चला हाँ, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये जूम है ना, जाहिर सी बात है, नेट है, कुछ ना कुछ। अच्छा सिस्टर अतिया, आप आए, आप ये वमरा अतु वाली यही पढ़े दोबारा। आयत नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वम्रातुहु हम्मालतल हतब। अच्छा, आपने अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीड 0 करनी, बिल्कुल हल्की स्पीड, 0 स्पीड। ठीक है, जी जी। उससे ये होगा, ये हमें भी पता चलेगा कि आपने 2-2 काउंट दिए। ठीक है, ओके जी जी। अच्छा जी। वम्रातुहु हम्मालतल हतब। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर साइमा, साइमा तलहा, आप भी इसी आयत को रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वम नहीं, लंबा नहीं करना। वम्राअतुहु। जी। वम, वम वम्राअतुहु हम्मालतल हतब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक सिस्टर रह गई, सिस्टर सादिया। आप ऐसा करें, दूसरी आयत पढ़ लें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मसद, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज एक सिस्टर हैं, सिस्टर 1 2 3, एक सिस्टर गजाला, सिस्टर मरियम, और सिस्टर सनावर। इन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट में आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जरूर आप लोगों ने ये साथ साथ एनालाइज जो करें तो हम, लेकिन ये कि आपने रिपीट करना है इसको साथ साथ, ताकि इंशाल्लाह जब हम सूरह बय्यिना पे चले जाएं तो आप लोगों को खुद पता हो। जैसे हम आपसे कहें कि आप शुरू करें इस आयत को, पहली आयत में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूल अप्लाई करना, तब तक हमारे इंशाल्लाह मखारिज भी कंप्लीट हो जाएंगे, और हो सकता है मदूद शुरू हुई हो। तो इंशाल्लाह आपके ये कि मखारिज भी आप लोगों ने साथ साथ रिपीट करने, जो आपको असाइनमेंट होमवर्क दिया जाए वो भी जरूर कीजिएगा। और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातुहू। हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, वही है।